پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے اہم خبر ہے۔ کورونا PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے منظور شدہ کورونا ویکسین کے فائل جاری۔ 8 مختلف کورونا ویکسین لگوانے والے مسافروں کو عمرہ کی اجازت۔ سعودیہ جانے والے زائرین کو مکمل کورونا ویکسین کی ڈوز لگوانا لازمی قرار۔ ویکسین میں فائزر، سائنوفارم، سائنوویک، آسٹرازینیکا شامل ہیں، جبکہ ماڈرنا، جانسن اینڈ جانسن، کینسائنو اور سپوتنک بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 8 مختلف کورونا ویکسین لگوانے والے مسافروں کو عمرہ کی اجازت، جبکہ سعودیہ جانے والے زائرین کو مکمل کورونا ویکسین کی ڈوز لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سعید احمد سعید۔ جی سعید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سعودی حکام کی ہدایات کی روشنی میں نئی ٹریول ایڈوائزری ہے وہ عمرہ زائرین کے لیے جاری کی گئی ہے، اور 8 مختلف ویکسین کے حامل افراد جو ہیں وہ عمرہ کے لیے سعودی عرب ہے وہ جا سکیں گے۔ 8 ویکسین کے اندر فائزر، سائنوفارم، سائنوویک، ایسٹرازینیکا، ماڈرنا، جانسن اینڈ جانسن، کینسائنو اور سپوتنک جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، اور یہ ہدایات کی گئی ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی 1 ڈوز لگوانے والے مسافر جو ہے وہ اب سعودی عربیہ ہے وہ جا سکیں گے، جبکہ فائزر، ایسٹرازینیکا اور ماڈرنا ویکسین کی 2 ڈوز لگوانے والے مسافر جو ہے وہ سعودی عرب ہے وہ جا سکیں گے عمرہ زائرین کے لیے، اور جبکہ سائنوفارم، سائنوویک اور سپوتنک ویکسین کی 2 ڈوز کے ساتھ 1 بوسٹر ڈوز لگوانا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ کینسائنو کی 1 ڈوز لگوانے والے مسافر کو جو ہے وہ 2 اضافی بوسٹر ڈوز ہے وہ لگوانا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہدایات کی گئی ہے کہ عمرہ زائرین کو روانگی سے قبل مکمل کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کرنا لازمی ہے، جس کے بعد تمام مسافر جو ہیں وہ بغیر کورونا PCR رپورٹ کے سعودی عرب ہے وہ جا سکیں گے، لیکن ان کے پاس کورونا ویکسین کا مکمل سرٹیفکیٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جی شہریوں کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سیمنٹ کی اونچی اڑان۔ گزشتہ 15 روز میں سیمنٹ کی بوری میں 150 روپے کا اضافہ۔ مارکیٹ میں سیمنٹ کی فی بوری 870 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ سیمنٹ کی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہیں، جبکہ شہریوں کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سیمنٹ کی اونچی اڑان ہے۔ گزشتہ 15 روز میں سیمنٹ کی بوری 150 روپے میں اضافے کے بعد 870 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ سیمنٹ کی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان ہیں۔ بات کریں گے، عاشر اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاشر، بتائیے گا۔ بالکل، ڈیرہ غازی خان میں بھی اب گھر بنانے کے لیے جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں ان کی دشواریاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ سیمنٹ کی بوری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 10 روز کی اگر ہم بات کریں تو سیمنٹ کی مختلف برانڈز کی جو سیمنٹ ہے ان کی قیمتوں میں 150 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے، اور مارکیٹ میں جو سیمنٹ ہے وہ 870-900 روپے تک جو بوری ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ جو شہری خریدار ہیں جو خریداری کرنے کے لیے ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔ بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سیمنٹ کی بوری کے حوالے سے؟ اتنا ریٹس اپ ہوئے ہیں، کتنا دشواری ہو رہی ہے؟ یہ بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ نے کہا تھا ابھی ہم یہ ہے نا اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت اوپر لے کے جائیں گے، لیکن انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ پچھلے 10 دنوں میں 150 روپے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ جمعرات تک اس کا 820 ریٹ تھا، آج اتوار ہفتے والے دن انہوں نے 50 اور بڑھا کے 870 کر دیا ہے ریٹ۔ تو آپ غریب لوگ کہاں بنائیں گھر؟ یہ تو جھوپڑیوں میں جانے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، غریب کے لیے اب گھر بنانا جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ جو سیمنٹ کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو شہری ہیں، جو خریدار ہیں، جو گھر بنوا رہے ہیں، گھر تعمیر کروا رہے ہیں، ان کی جو مشکلات مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شکریہ عاشر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہنگائی کے سونامی نے مریضوں کو بھی نہ بخشا۔ علی پور میں اشیاء خورنوش کی طرح جان بچانے والی ادویات بھی مہنگی ہو گئیں۔ سر درد، بخار کی پیناڈول اور دل کے مریضوں کی ٹیبلٹ جو ہے وہ 6 ماہ سے نایاب ہے۔ 350 روپے والا ڈبہ 550 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کو اعلیٰ حکام سے ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بات کریں گے، علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی حسن، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان نے مریضوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جو پیناڈول گولی ہے وہ نایاب ہو چکی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہے اور مارکیٹ سے وہ غائب ہے، اور دوسرا جو دل کے امراض میں انڈیرال استعمال ہوتی تھی وہ بھی گولی جو غریب لوگ استعمال کرتے تھے وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہے۔ یہ بتائیے گا کہ انڈیرال بھی شارٹ ہے اور پیراڈول بھی شارٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ پیناڈال پیراسٹامول میں ایک مین ٹیبلٹ ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیناڈال کہیں بھی نہیں مل رہی، اگر مل بھی رہی ہے کہیں اکا دکا تو وہ بھی بلیک میں مل رہی ہے۔ یہ ہول سیلروں کے پاس ہے، وہ مرضی سے پیسے لیتے ہیں اور ایڈوانس لیتے ہیں۔ ایڈوانس پیسے بھیجو کو بھیجیں نہ بھیجیں یہ ان کی مرضی۔ اتنی مسئلے مسائل ہیں پیناڈال کی وجہ سے، ہر بندے کی ضرورت ہے پیناڈال، ہر بندے کے گھر میں ضرورت ہے، وہ بھی شارٹ ہے ایک اہم پیراسٹامول میں، وہ نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ سے باقی جتنے بھی پیراسٹامول والے وہ بھی شارٹیج پہ جا رہے ہیں۔
हाँ जी बताइएगा, पैराडॉल शार्ट है और इसके बाद इंडियन शार्ट है, इस वाले से आप क्या कहते हैं? पैनाडॉल तो हर बंदों को पता है, घर के ज़रूर आता है, उसके वजह से बहुत तकलीफ है आवाम। और जिसके पास है 5 रुपये वाली गोली अब 10 रुपये में दे रहे हैं और एक पत्ता 50 रुपये का दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं, एक पत्ता 50 में दे रहे। बताइएगा आपको क्या मुश्किल है? जी पैनाडॉल नहीं आ रही, और जिसके पास भी पड़ी है 50 का पत्ता, 40 का पत्ता, 30 का पत्ता दे रहे हैं। और इंडियन भी शॉर्ट है, दिल के मरीज के लिए वो भी शॉर्ट है, और हर आइटमों के नए रेट आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उन्होंने कहा कि पैनाडॉल जो है गरीब लोगों की अद्वियात थी, मगर जो है वो मार्केट से गायब हो गई और शार्ट है। इनका अलावा काम से ये मुतालबा है कि ये अद्वियात जो है फौरी तौर पे मेडिकल स्टोर पे अवेयर की जाए। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत, आर्ट्स काउंसिल पार्क में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, पार्क में वॉक थ्रू गेट तो मौजूद मगर फाल ही नहीं है। वॉक थ्रू गेट फाल न होने से पार्कों की हिफाजत पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। इस मौजूद मुल्तान शहर के अहम जो पार्क है उसमें, और ये आर्ट्स काउंसिल पार्क है जो कि यहाँ मुल्तान के आर्ट्स काउंसिल के करीब वाक़या है। MDA के लोग की जो कॉलोनी है यहाँ पर वो खासी बड़ी तादाद में तफरीह के लिए आते हैं। इस पार्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट्स जो लगाए गए थे PHA की जानब से, एक अरसा दराज से बंद पड़े हुए हैं, और वॉक थ्रू गेट्स बंद होने की बाइस यहाँ पर जो पार्क की सिक्योरिटी है उस पर खतरा बड़ा सवाल निशान है। तो शहरी जो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। वॉक थ्रू गेट्स बड़े अरसे से बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, जब एक गार्ड तैनात है तो ये खुलने चाहिए। सेफ्टी के हवाले से प्रिवेंटिव एक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। पहले ये चालू थे, फिर बाद में ये बंद कर दिए गए, तो ये अच्छी बात है कि होने चाहिए, ताकि लोगों के लिए सेफ्टी के हवाले से ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, आवाम की सिक्योरिटी के लिए खासा अहम इकदाम है, लेकिन PHA की जानिब से अरसा दराज से जो वॉक थ्रू गेट्स हैं इनको फाल नहीं किया जा रहा है। जो तफरीह के लिए और वॉक करने के लिए आने वाले यहाँ पर पार्क में शहरी उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, कम अज़ कम इंतजामिया PHA इन पार्कों में जो वॉक थ्रू गेट्स हैं उनको जल्द अज जल्द फाल करे, ताकि वो भी जब पार्कों में आएँ वॉक करने के लिए, तफरीह के लिए, तो महफूज फील करें। और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द आर्ट्स काउंसिल पार्क के जो वॉक थ्रू गेट्स हैं उनको फाल किया जाए। जी प्रिया, अली रियाज आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान की मार्केट्स में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, ताजिरों ने पुलिस से मार्केट्स में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल है, मार्केट्स में बढ़ती हुई डकैतियों और चोरियों के बाइस जो है शहर भर के ताजिर जो हैं वो परेशान हाल हैं, और मुतालबा यही कर रहे हैं कि मार्केट्स में सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि दिन दहाड़े जो है अब डकैतियाँ होने लग गई हैं। कल भी समीजाबाद में सोने की दुकान में जो है डकैती की गई है और ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है उनका हुआ है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सिटी सदर खालिद कुरैशी। जो डकैतियाँ हो रही हैं वो हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस हैं। ताजिर इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, और हमारे अपने सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है। कल का शाम का एक वाक़या हुआ है मन्नान शौकत ज्वेलर मुल्तान में, जिस तरह से डकैती की वारदात हुई है कि 5-6 डाकू सरेआम ऑटोमेटिक असला 222 वगैरह ऐसे फायरिंग करते रहे, और 40 मिनट तक वहाँ थाना न्यू मुल्तान की हदूद में वहाँ पुलिस नहीं पहुँची। 1-5 करते रहे, यहाँ तक कि हमारे अपने गार्ड्स भी थे, हमारे कैमराज थे, इसके बावजूद वहाँ वो लूट कर ले गए। इतना खौफ और हिरास है इस वक्त ताजिरों में कि बिल्कुल डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। आए रोज़ किसी न किसी मार्केट में बड़ी ओपनली बड़ा बेखौफ किस्म की डकैतियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, बात करें मार्केट्स में तो मार्केट्स में तो खौफ का एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली ही इस तरह से कई वाक़े हो चुके हैं। हमने सुना कि सूरज मैन में भी इस तरह से एक ताजिर को मार गए थे, और इसके साथ साथ मुमताज़ाबाद मार्केट में भी, और अब इस तरह से एक बड़ी डकैती जो है वो हुई है। कल के दिन में मज़ीद ताजिर जो है यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ दिलाने का सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, उसको ठीक किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट्स में सिक्योरिटी पर इंसाफ दिलाने का बेहतर किया जाए। शुक्रिया इब्राहिम, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रेस क्लब बहावलपुर में नए मेंबरान बनाने के हवाले से तकरीब, प्रेस क्लब में 16 नए मेंबरान बना दिए गए। बात करेंगे, महमूद सहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर प्रेस क्लब में मेंबरान की तादाद में इजाफा हुआ है, तकरीबन 16 नए मेंबर्स बनाए गए हैं। इस हवाले से अभी तकरीब का इनेकाद हुआ है। शायद अख्तर बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सदर हैं। नए मेंबर्स बनाए गए हैं, क्या पॉलिसी? देखिए, ये आज ये मेंबरशिप अवार्ड करने की तकरीब थी। मुझे खुशी है कि ये 16 जो है वो दोस्त अहबाब जो है मजीद इसमें इजाफा हुआ है मेंबरशिप में।
मुझे यकीन है कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर और बिलखसूस बहावलपुर शोबा सहाफ़त की जो मुश्किलात हैं, ये जो नए साथी हमारे इस शोबे से आए हैं, हमारे इस मुश्किलात को दूर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पहले भी हमारे वसाइल की कमी के बावजूद हमारे साथी जो है वो यहाँ के मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इनके आने के साथ मज़ीद तवन्नाइयों के साथ हम यहाँ के मसाइल नुमाया तौर पर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मेंबर से भी पूछते हैं ना जो बने हैं कि वो इस हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे। आप एक लेडी रिपोर्टर के तौर पर यहाँ पे आई हैं, क्या इरादे रखती हैं? नई मेंबरशिप मिल गई आपको? हाँ जी, मैं ख़वातीन को एक रिसर्च भी कर रही हूँ, मैं जर्नलिस्ट पे वैसे तो, और उसमें जो है मैं साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो मेंटल हेल्थ के साथ मैं उनके इम्पैक्ट भी देखना चाह रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो लेडी ऑफिसर्स हैं, मैं कल को उनके साथ भी रिसर्च करने का इरादा रखती हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ प्रेस क्लब के चौधरी सलीम साहब। चौधरी सलीम साहब, एक अच्छा कदम, मेंबर्स की तादाद में इजाफा हो गया, क्या देख रहे हैं? इलेक्शंस में गहमा गहमी मजीद बढ़नी जाएगी? जी बिल्कुल, जिसका हक बनता है मेंबर बनने का तो उसको मेंबरशिप ज़रूर देनी चाहिए, और हम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, और ना ही हमने किसी ऐसी उम्मीद में बनाए हैं कि ये हमें आइंदा इलेक्शन में हमें वोट देंगे। मेरिट पे बने हैं, और इंशाअल्लाह जो मुस्बत सहाफ़त है उसके लिए नए नौजवान नस्ल को भी आना चाहिए। जैसे हमारी एक बहन मेंबर आई हैं, हमारी पहले एक मेंबर हैं ख़वातीन में से, तो हमें मालूम है कि जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो ख़वातीन ही बेहतर अंदाज में उनको माशरे के सामने ला सकती हैं। तो हमने मेंबर जो बनाए गए हैं जी, वो किसी बुनियाद पर नहीं बनाए गए बल्कि उनकी अहलियत और मेरिट पर बनाया गया, ये बताना था चौधरी सलीम साहब का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। 16 नए मेंबरान का इजाफा किया गया बहावलपुर प्रेस क्लब के। महमूद ज़हीर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी 15 मार्च बरोज़ मंगल को बहावलपुर का दौरा करेंगे। सदर पाकिस्तान सैलानी एहसास लंगर खाना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। लंगर खाना की तकरीब में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी होंगे। सदर पाकिस्तान बहावलपुर में सियासी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। मुल्की सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक के पेश नज़र मकामी MNA से भी मुलाकात की जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी 15 मार्च बरोज़ मंगल को बहावलपुर का दौरा करेंगे। सैलानी एहसास लंगर खाना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। लंगर की तकरीब में सदर पाकिस्तान मेहमान खुसूसी होंगे। बहावलपुर में सियासी वफूद से मुलाकात भी करेंगे। मुल्की सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक के पेश नज़र मकामी MNA से भी मुलाकात की जाएगी। मुल्तान हुकूमत पंजाब के 18 अवामी रिलीफ इकदाम कामयाबी से जारी। सरकारी इमारात, बस अड्डों, सरकारी अस्पतालों, मराकज़ सेहत की सफाई जारी। सरकारी डिस्पेंसरी कबूतर मंडी की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई। डिस्पेंसरी में रोजाना 400 मरीज इलाज से मुस्तफीद होते हैं। डिस्पेंसरी में ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है। डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन पर शहरियों का खुशी का इजहार। मुल्तान रेलवे ग्राउंड में 3 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। ट्रैफिक ब्रांच ने मैकेनिकल एंड कमर्शियल ब्रांच को शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। DS रेलवे नवीद मुबशर चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मज़ीद जानेंगे मौसम मुल्क से। जी मौसम मुल्क बताइएगा। मुल्तान के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा क्रिकेट मेला का इनकाद हुआ DS टूर्नामेंट के नाम से, और DS रेलवे की जानिब से इसकी भरपूर जो है हौसला अफजाई की गई। आज फाइनल था 2 टीमों के दरमियान, जो कि एक टीम जीती, उसको खुद हौसला अफजाई के लिए DS यहाँ पर मौजूद है। बहुत प्यारी एक्टिविटी है, काम तो हो रहा है, उसके साथ साथ लोग देख रहे हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं मर्ज हो रहे हैं, टीम लीडरशिप पैदा हो रही है। क्रिकेट एक बड़ा मकबूल तरीन खेल है हमारे पाकिस्तान का, और जो खेलों के लिए तामीरी सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए। ये इनकाद हमने 2 महीने पहले किया था, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम हर हफ्ते हमारी कोशिश है कि इस तरह का कोई ना कोई एक एक्टिविटी अरेंज करते रहें, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड रहें और एक तामीरी और एक मुस्बत सोच के साथ काम में उनकी लगन भी जारी रहे। DS साहब, जिस तरीके से कोविड आया, कोविड ने हर चीज़ को थमा के रख दिया था, अब ये रौनकें बहाल हो रही हैं, क्या समझते हैं? ये आप कह रहे हैं आगे भी हौसला अफजाई दे रहे हैं कि आगे भी चलेंगी एक्टिविटी? जी बिल्कुल, इसमें वर्कर्स, उनके बच्चे, हमारे तमाम जो सेगमेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमने पार्टिसिपेट करवाया। सैरोज़ा ये एक टूर्नामेंट था, और इस तरह के टूर्नामेंट्स आइंदा अनकरीब आप देखेंगे हम करवाते रहेंगे। हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ खेलों के लिए मौजूद है। ठीक है जी, DS रेलवे नवीद मुबशर चौधरी ने इस वक्त इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिया, और जो रेलवे के ग्राउंड्स की रौनकें हैं उनको बहाल कर दिया। ना सिर्फ बहाल किया है बल्कि इनको कंटिन्यू रखने का भी इस वक्त ऐलान कर दिया। शुक्रिया मौसम मुल्क, आप हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम यार खान अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट का मैदान सज गया। लामा इकबाल क्रिकेट क्लब और यंग ब्लोज क्रिकेट क्लब मद्दे मुकाबिल है।
बात करेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अल्लामा इकबाल क्रिकेट क्लब और यंग बलोच क्रिकेट क्लब के माबैन दोस्ताना मैच जारी है, जिसमें खिलाड़ी जो है शानदार क्रिकेट का खेल पेश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस खेल को छुट्टी के रोज कितना एंजॉय कर रहे हैं? संडे को हमारा मैच है, छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्लब मैचेस होने चाहिए ताकि जूनियर और सीनियर मिलकर खेलें। आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच के हवाले से? जी, मैंने ये कहना है कि आजकल जो मैचेस हो रहे हैं, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ गई है, और मैं ख़ासकर रमीज़ राजा और पीसीबी के जो बोर्ड के मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उन्हें चाहिए कि इस तरह के छोटे छोटे लेवल के भी टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी ऊपर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से, कितने पर उम्मीद हैं जीत के लिए? आज के मैच के हवाले से हमारा दोस्ताना मैच है, और उसके बाद हमारी टीम अच्छा खेल रही है। 30 ओवर का मैच है और हमारा 120-25 स्कोर हो चुका है 16-17 ओवरों में, और अभी हमारे पास विकेटें मौजूद हैं। इंशाल्लाह अच्छी गेम होगी, अच्छा टारगेट देंगे, इंशाल्लाह मैच विन करेंगे। आज के मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का मैच बहुत अच्छा हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम जीतें इस चीज़ को, और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छे बॉलर लगे हुए हैं, हमारी काम पे टांगने लग जाती हैं उनके सामने जब हम बैटिंग करते हैं। तो बस यही है कि भी इंशाल्लाह जितनी एफर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो स्टेडियम है इसमें और भी तरक्की होनी चाहिए ताकि हमें और भी तरक्की होनी चाहिए, इंतजाम और भी बेहतर होने चाहिए, और इंतजाम के साथ साथ जहां खेल का मैदान में जो खिलाड़ी हैं उसके साथ साथ शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। विहाड़ी में कचरा चुनने वाले नौजवान क्रिकेटर की जिला भर में धूम। इंडिया एक्सप्रेस की तरह बर्क रफ्तारी से बॉलिंग करने वाला फैसल पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान की तवज्जो का मुंतज़िर। हाफिज साले मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। विहाड़ी की सरजमीन ने पाकिस्तान को वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद इरफान जैसे खिलाड़ी दिए, जिन्होंने अपने तेज बॉलिंग से मुल्क का नाम रोशन किया। विहाड़ी का एक और टैलेंट सामने आ गया। फैसल नामी नौजवान जो झुग्गियों में रहता है और कचरा उठाकर इसके हलाल कमाता है। टैलेंटेड नौजवान खुर्शीद नूर स्टेडियम में अपनी तेज बॉलिंग की बदौलत ज़िले सतह पर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करके अपना लोहा मनवा चुका है। बल्कि रफ्तारी ऐसी कि शुएब अख्तर की झलक दिखाई दे। क्रिकेटर फैसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान की तवज्जो का मुंतज़िर है। झुग्गियों में रहता हूँ, पक्की वासु, बहुत गरीब हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मैं शुएब अख्तर का फ़ैन हूँ, उसको देख देख के ही बॉलिंग करने लगा हूँ और उसके तरह ही बॉलिंग जाती है। सबसे ज़्यादा विहाड़ी में विकेटें मैंने ली हैं। फैसल के रिश्तेदार इसको कौमी क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन गुर्बत और वसाइल की कमी आड़े आ जाती है। हमको भी क्रिकेट खेलने का शौक है। हम झुग्गियाँ वाले बंदे है जी, ये पाकिस्तान के टीम के लिए मुंडा हमने तैयार किया है। अल्लाह ताला इसको भी पाकिस्तान की टीम में शामिल करे। पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान मौका दें तो फैसल भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। हाफिज साले मोहम्मद, रोही न्यूज, विहाड़ी। स्नोकर को बानी पाकिस्तान और नवाबों का खेल समझा जाता है। पाकिस्तान में स्नोकर खेलने के रुझान में इजाफा हो रहा है। नौजवानों समेत तमाम उम्र के अफराद इस खेल के शौकीन हैं, जिसके बायस स्नोकर क्लबों की रौनकों में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में स्नोकर खेलने के रुझान में इजाफा। स्नोकर क्लबों में नौजवान खिलाड़ियों की रौनकें लग गईं। कहते हैं साफ सुथरे माहौल में खेलने से इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहता है। ये बहुत अच्छी गेम है जहाँ पे हमें, और ये ऐसी प्लेस है कि जहाँ हमें सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी प्रोवाइड होता है। साफ सुथरी गेम है जिससे हमारे हाथ भी साफ रहते हैं और ये माइंड की गेम है। स्नोकर के कोचेस का कहना था कि गुज़िश्ता कुछ सालों में स्नोकर को गलत तस्वुर किया जाता रहा, मगर अब ये रुझान बदल रहा है। पिछले कुछ अरसे से इसे गलत समझा जाता था, मगर अब लोगों को समझ आ गई है कि ये अच्छी गेम है। इससे माइंड इंसान का रिलैक्स होता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं इस गेम से। वक्त के साथ एक बार फिर स्नोकर खेलने के रुझान में इजाफा होने लगा है, जिसको कोच और खिलाड़ियों ने खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माज़बिन शफीक, मुल्तान। शहरोलिया के बासी संडे को फन डे बनाने के लिए घर से बाहर निकला है। छुट्टी के रोज मुल्तानियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स और होटल्स का रुख कर लिया। छुट्टी का दिन हो और मुल्तानी बाहर से नाश्ता ना करें, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। शहरी छुट्टी के दिन घर की बजाय बाहर से नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। दोस्तों के हमरा लजीज नाश्ते से लुत्फ अंदोज और हफ्ता भर की थकान दूर करते हैं।
ज़्यादातर मुल्तान में हम इतवार को तो बाहर ही करते हैं नाश्ता, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे मुल्तान में। मिसाल BCG चौक है और रिवाड़ी मोहल्ला है, जिस तरह से 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ बेहतरीन नाश्ता मिलता है। बस यहीं आए हुए थे तो इसलिए सोचा कि अच्छी जगह तलाश कर रहे थे, तो ये बेहतर जगह थी, एक अच्छा टेस्ट है यहाँ पे। शहर औलिया के बासी छुट्टी के दिन होटलों में मजेदार खाने खाते नजर आए। हलवा पूरी की दुकानों पर भी शहरियों का रश रहा। नाश्ते में चिकन कोफ्ते और चने, चना अंडा, पाए, कुलचे नान और पराठों की मांग भी बढ़ गई। इतवार के दिन दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। रूटीन ये होती है, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है और शहरी ज़्यादातर नाश्ता बाहर से करते हैं, और हमारे पास अलग किस्म का नाश्ता है। इसमें चने होते हैं, अंडा होता है, साथ कोफ्ते होते हैं, बड़े पाए होते हैं, हलीम लगाते हैं, साथ नान लगा रहे हैं, हलवा पूड़ी है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना इधर हमारा अच्छा मेयार है, इधर आसपास किसी लोगों के पास नहीं है। महंगाई की वजह से ना हम सब परेशान हैं। सिर्फ हफ्ता, जुम्मा और इतवार ये 3 दिन काम के होते हैं। इन्हीं दिनों में आवाम सारी आती है नाश्ते के लिए, और बहुत ज़्यादा रश होता है इतवार दिन। संडे को खवातीन का भी किचन से ऑफ होता है, इसलिए बच्चे बड़े सभी बाहर से नाश्ता करके छुट्टी का मजा दोबाला करते हैं। कैमरामैन अजीम सागर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।